Hello everyone. Today our topic is conditions for no turning effect. हम देखें कि अगर हम कोई पाइवटेड बॉडी पर एक फोर्स लगाए तो वो बॉडी अबाउट इट्स पाइवट रोटेट करता है. क्यों करता है? क्योंकि हम जो फोर्स लगाए उसके वजह से एक टॉर्क जनरेट हुआ जो उस बॉडी को उसके एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करता है. तो कंडीशंस फॉर नो टर्निंग इफेक्ट, इस टॉपिक को जानने से पहले हमको टॉर्क जानना पड़ेगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड टॉर्क टेकिंग एन एग्जांपल. Let us say this is a rod, okay? It is pivoted somewhere here, okay? This is its pivot. If we apply a force somewhat here at some angle, let's say the angle is theta, and the point of application of force is at a distance of r from the pivot, then we can define torque as r cross f. Now what is this r? This r vector is the distance of the point of application of force, or you can say the line of action of force from the pivot, and f is the force vector, okay? So it's basically the cross product between the r vector and force vector, okay? Which we can further write as r f sine theta, right? Where theta is the angle between the force vector and the radius vector. अब देखो, टर्निंग इफेक्ट जीरो होने का मतलब यही नहीं कि हर वर्स मीन्स ऑलवेज टॉर्क जीरो होगा, ऐसा नहीं है. सो कंडीशंस फॉर नो टर्निंग इफेक्ट को हम दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे. पहला, व्हेन टॉर्क इज जीरो, टर्निंग इफेक्ट इज जीरो. मतलब मान लीजिए कोई बॉडी है pivoted at some point here, इस पे हमको यहाँ फोर्स लगाए F, तो हम जानते हैं कि बॉडी ऐसे कुछ रोटेट करेगा, राइट? बॉडी ऐसे रोटेट करेगा. अब टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा. यहाँ पर टॉर्क को ज़ीरो कैसे बनाए? आइदर इसको ज़ीरो कर दे, या फिर इसको ज़ीरो कर दे, या फिर इस जो थीटा है थीटा का ज़ीरो कर दे. अगर थीटा ज़ीरो है तो साइन थीटा ज़ीरो होगा, और तो ये पूरा टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा. तो इन तीनों में से कोई एक को हम ज़ीरो कर सकते हैं, या फिर दोनों को भी ज़ीरो कर सकते हैं. तो आइदर आर ज़ीरो होगा और एफ ज़ीरो होगा, या फिर साइन थीटा ज़ीरो होगा, मतलब थीटा ही ज़ीरो होगा. सो लेट अस टेक मतलब अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल यूजिंग अ डायग्राम. Suppose this is the body, once again pivoted somewhere here. If we apply a force here directly at the pivot, means there is no distance between the pivot and the point of application of force, then r becomes zero, then you will have torque zero and the body will not turn. You can understand that. And if you don't apply force, obviously the body will not turn. And sine theta is zero, that means we are applying a force parallel to the radius vector. That means force vector and radius vector are parallel to each other, then also body will not turn. See this using this diagram. Suppose body is pivoted at here, I apply somewhat force here, then the body will not turn, obviously, because body will turn like this, but this force is not turning the body like this, okay? Let us take another example. Suppose this is our rod pivoted at this point P. I apply a force like this. This is the r vector, this is the f vector. The force is at angle theta. We can divide it into two components, f sine theta and f cos theta. See, in this diagram, why I drew this f cos theta won't rotate this rod. F cos theta won't rotate this rod. Which will rotate this rod is the f sine theta, that is perpendicular to the r vector. So here we can also write torque is equals to rf sine theta. See, product of r and f, right? Now second case. First case was when torque is zero, turning effect is zero. I hope you understood. Second case is तो इसका मतलब क्या है? मतलब टॉर्क नॉन जीरो है, मतलब कुछ टॉर्क है, हम जो फोर्स अप्लाई किए, जिस डिस्टेंस पे अप्लाई किए, उस वजह से कुछ टॉर्क है, लेकिन बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है. तो ऐसा क्यों हो सकता है? दिस केस इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो इस केस को भी हम एक डायग्राम से समझते हैं, ओके?
मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, पाइवटेड एट दिस पॉइंट, ये 2 डायमेंशनल प्लेन में है, ठीक है, ये रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये जेड एक्सिस है। तो ये जो डिस्क है ये कुछ एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है, 2 डायमेंशनल, और पाइवटेड ऐसा ही है कि सिर्फ इस डायमेंशन में ही घूम सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप फोर्स को कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई किए, तब विल द बॉडी रोटेट? थिंक। When you apply force like this upwards on the disk, let us say, I will show you. Let us say this is a book, okay, which is pivoted here. Now, if I apply force downwards like this from this, okay, it is not rotating, okay. तो ऐसे ही अगर हम डिस्क को नीचे से धक्का दे तो डिस्क रोटेट नहीं करेगा। डिस्क तभी रोटेट करेगा अगर इसको एक टेंजेंशियल फोर्स मिल जाए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इफ द फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन टर्निंग इफेक्ट इज नॉट जीरो, मीन्स सॉरी टॉर्क इज नॉट जीरो। बट देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये फोर्स। तो ये दोनों जब पैरेलल होगा, देखिए ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल हो गया तो इवन आफ्टर हैविंग नॉन जीरो टॉर्क, अब आप कैसे बोले कि नॉन जीरो टॉर्क है, चलिए देखते हैं। देखिए हम फोर्स को जैसे लगाए, इससे कुछ डिस्टेंस आर है, ठीक है, आर कुछ डिस्टेंस आर है, एफ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टॉर्क रहेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर, राइट। तो यहाँ पर एफ भी नॉन जीरो नहीं है, आर भी नॉन जीरो नहीं है, तो टॉर्क तो ऑब्वियसली रहेगा। टॉर्क क्यों जीरो होगा? टॉर्क ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन बॉडी रोटेट नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, ये बात पूरा रट लेना चाहिए आपको। टॉर्क ओनली along एक्सिस ऑफ रोटेशन मेक्स द बॉडी रोटेट, अदरवाइज नॉट। मतलब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के along टॉर्क लगे तभी बॉडी रोटेट करेगा। अब देखिए, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ है, तो अगर एफ और आर इस डायरेक्शन में है तो टॉर्क भी आर के साथ और एफ के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, दोनों के साथ ही इंडिविजुअली परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब कुछ ऐसे, मतलब जेड एक्सिस में, ठीक है। यह है टॉर्क। तो देखिए टॉर्क क्या अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है? नहीं, टॉर्क कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, आर इज दिस साइड, टॉर्क इज दिस साइड। टॉर्क कुछ टेंजेंशियली लग रहा है, लेकिन टॉर्क टेंजेंशियली तो काम नहीं बनेगा। टॉर्क को अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के बराबर टॉर्क लगना चाहिए। मतलब अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसी के डायरेक्शन में टॉर्क लगना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे, मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड बॉडी ऐसे 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 रोटेट करेगा, तो टॉर्क को इसी डायरेक्शन में लगना चाहिए, ऐसे कुछ ऐसे या फिर ऐसे, तभी बॉडी रोटेट करेगा। अगर कुछ ऐसे लगा नहीं रोटेट करेगा, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ हम नोट बना लेंगे, ओके, वो है टॉर्क along axis of rotation only produces turning effect, ठीक है। टॉर्क along axis of rotation only produces turning effect। जैसे हम बताते हैं कि एक सेंटेंस है कि he was walking along the bank of the river, मतलब रिवर बैंक के पैरेलल वो चल रहा था। ये रिवर है कुछ, वो इसी डायरेक्शन में चल रहा था। तो ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो टॉर्क को भी इसी डायरेक्शन में होना पड़ेगा, तब भी बॉडी रोटेट करेगा। ओके, सो दिस वाज टुडेस वीडियो। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, conditions for which the body does not rotate is either when torque is zero, when torque is non-zero. When torque is zero, there are two conditions: if force is parallel to the distance vector, second point, distance vector or position vector कह दो कुछ भी, second point, if force passes through axis of rotation. दूसरा, जब टॉर्क नॉन जीरो है लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे आ रहा है, कुछ एफ भी है, टॉर्क नॉन जीरो है, तब कौन सी कंडीशन में बॉडी रोटेट नहीं करेगा? अगर फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस वाज टू दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू।